Hello बच्चे, how are you? So our genetic code is done, mutation part is done, and now the next topic is translation, right? But the point is, transcription may we have formed all the three kinds of RNAs, that is rRNA, mRNA and tRNA. ठीक है, and all these three are involved in the process of translation. Clear? बट ट्रांसलेशन प्रोसेस आपको तब तक समझ में नहीं आएगा अनटिल और अनलेस यू नो ऑल द थ्री काइंड्स ऑफ आरएनएज. जब तक आपको ये तीनों आरएनएज की इंफॉर्मेशन नहीं होगी, यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डू दीज आरएनएज, इनको समझो एंड देन वी विल proceed with the process of translation. Okay, so the point is, first of all let me tell you that what we have here, हम लोगों ने DNA से RNA का सफ़र तय कर लिया. That is replication, DNA to DNA done, DNA to RNA is transcription. Okay, now RNA to protein is to be formed. RNA to protein is to be formed, and see here how many types of RNAs we are talking about. Here we have rRNA, which is ribosomal RNA. Then we have tRNA, which is transfer RNA, and next we have mRNA, which is messenger RNA. So during the process of transcription, these three types of RNAs are formed, right? But प्रोटीन बनाएगा कौन? दिस mRNA इज गोइंग टू फॉर्म द प्रोटीन. प्रोटीन किससे बनेगा? mRNA से प्रोटीन बनेगा. दैट इज द बेसिस ऑन mRNA विल बी रेड एंड amino acid sequences will bind, they will form a polypeptide and a complete protein will be formed. ठीक है, majorly mRNA is used to make the protein in the process of translation. अगर mRNA से प्रोटीन बन रहा है, then what is the use of rRNA and tRNA? They are the helpers. They are used during the process of protein synthesis. Is that clear? Right? Better is to understand them, to understand their structures, so that जो आपकी आगे की जर्नी है ट्रांसलेशन की, that would be easier. Clear? चलो. फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी फर्स्ट लेट अस स्टार्ट विद rRNA. एंड बच्चे आपको इनके फंक्शंस भी पूछे जाते हैं तीनों RNAs के. व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ राइबोसोमल RNA, मैसेंजर RNA एंड ट्रांसफर RNA. क्लियर? 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ जाता है. चलो, सो राइबोसोमल rRNA refers to, it is ribosomal RNA. rRNA is ribosomal RNA. ओके, चलो, अब राइबोसोमल RNA इफ़ वी आर सेइंग, दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं राइबोसोम बनाने में हेल्प कर रहा है. rRNA का फॉर्मेशन न्यूक्लियोलस में होता है. ठीक है, इन यूकैरियोट्स इट इज़ फॉर्म्ड इन न्यूक्लियोलस. सेकेंड थिंग इज this rRNA along with the proteins, it is used to make the ribosome, and we know that ribosome protein synthesis कहाँ होता है? हम हमेशा बोलते हैं ribosomes help in protein synthesis, ribosomes help in protein synthesis, right? So this rRNA is useful in formation of ribosomes. Ribosomal RNA, it help in formation of ribosomes. Clear? अब ribosomes बनाने में तो हेल्प कर रहा है, किसके साथ? along with the protein, along with the proteins. proteins किस में हेल्प करते हैं? बाइंडिंग में हेल्प करते हैं. we know that prokaryotes and eukaryotes में there are different kinds of ribosomes and different subunits as well, right? so let us study here. जल्दी से prokaryotic and eukaryotic ribosomes पढ़ लेते हैं. moreover rRNA को कौन सा पॉलीमरेज बना रहा था? rRNA was being formed by RNA polymerase 1 in case of eukaryotes. Moreover, RNA polymerase 3 was making one of the rRNA. ठीक है, वो आपको अब क्लियर होगा कि वो क्या बनाता है, कहाँ यूज़ होते हैं, राइट? वरना लर्न करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. क्रैम तो कर लोगे
बट वो क्रैमिंग थोड़े टाइम के लिए होती है। अब एक्चुअली आपको पता चलेगा वो जो आपने rRNA पॉलीमरेज 1 एंड RNA पॉलीमरेज 3 वाले rRNAs पढ़े हैं, वेयर आर दे एक्चुअली यूज्ड, वेयर आर दे एक्चुअली इन्वॉल्व्ड, राइट। चलो, सो let us see, here we have prokaryote, here we have prokaryote, and here we have eukaryote, राइट। चलो, अब प्रोकैरियोट में कौन से राइबोसोम्स होते हैं? वी नो दैट प्रोकैरियोट्स हैव 70S राइबोसोम्स एंड यूकैरियोट्स हैव 80S राइबोसोम्स। ये चीज़ पता है, +1 में करके आए हैं। 70S एंड सब यूनिट्स आर, व्हाट आर द सब यूनिट्स? 70S that is made up of 50S subunit and another subunit is 30S subunit. This is the larger subunit and smaller subunit is 30S subunit. If we talk about 80S, subunits are 60S and smaller subunit is 40S subunit. ठीक है, अब देखो बच्चे, S is the sedimentation coefficient और Swedberg unit. S क्या होता है ये भी समझ लो। sedimentation coefficient means, देखो 70S राइबोसोम को अगर हम एक टेस्ट ट्यूब में डालकर सेंट्रीफ्यूज कराते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारी वैल्यूज़ होती हैं, लाइक दिस इज़ 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20 लाइक दिस, सो ऑन। ठीक है, अब जब हमने 70S राइबोसोम को सेंट्रीफ्यूज में रोटेट किया एट अ वेरी हाई स्पीड, तो ये कहाँ जाके सेटल हुआ? So that is at this value. That's why this is what? This is the sedimentation coefficient और Swedberg unit कि कहाँ पे जाके ये settle हो रहा है, right? Similarly, but हमने जब इसकी सब यूनिट्स को सेटल करवाया, सेंट्रीफ्यूज करवाया, तो 50S सब यूनिट जो ये वाली लार्जर सब यूनिट थी, इट सेटल्ड समवेयर एट 50S रीजन एंड स्मॉलर सब यूनिट सेटल्ड एट 30 रीजन। इज दैट क्लियर? इसको आपने ऐड ऑन नहीं करना है। 50 + 30 कम्स आउट टू बी 80, बट ये यूनिट्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रीफ्यूजेशन, ये कहाँ सेटल हो रही है? दिस इज दैट सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। इज दैट क्लियर? राइट। चलो, नेक्स्ट पार्ट इज, अब यहाँ पे देखो, लेट मी मेक हियर, दिस इज द स्मॉलर सब यूनिट, क्लियर, एंड दिस इज द लार्जर सब यूनिट in case of prokaryote. Similarly, in case of eukaryote, this is the smaller subunit and this one is the larger subunit. Clear? चलो, okay. अब smaller subunit and larger subunit है अपने पास। अब ये that is this one is 50S यहाँ पे, और ये कौन सी है? This is 30S. Here this is 60S and it is 40S. ठीक है, अब यूकैरियोट करते हैं पहले, बिकॉज यूकैरियोट आप लोग पढ़कर आए हो दैट RNA पॉलीमरेज 1 ने क्या क्या बनाया था। सो 60S सब यूनिट इज मेड अप ऑफ, इट इज मेड अप ऑफ 28S rRNA, it is made up of 5.8S rRNA and 5S rRNA, that is RNA polymerase 1 ने ये दोनों बनाए थे, and this was made by RNA polymerase 3। तो ये तीनों rRNAs मिलते हैं and they form 60S subunit along with some proteins, plus near about 50 proteins are there which combine and form this subunit. Is that clear? Similarly, 40S, it is made up of 18S rRNA. 40S subunit is made up of 18S rRNA. It is made up of 18S rRNA and near about 33 proteins are required. 33 proteins are required. राइट। अब देखो, प्रोटीन्स क्या करती हैं? बाइंडिंग में हेल्प करती हैं इन rRNAs के। मोर ओवर, जब ये दोनों को लॉक होना है, देखो बच्चे, ये जो सब यूनिट्स होती हैं ये सेपरेटेड होती हैं,
सेपरेट घूम रही होती हैं। बट जब प्रोटीन सिंथेसिस होना होता है तो mRNA के ऊपर ये आके बैठती हैं और लॉक हो जाती हैं, एंड ड्यूरिंग दैट टाइम मैग्नीशियम Mg2 पॉजिटिव आयंस आर रिक्वायर्ड। Mg2 positive ions are required at that time. Is that clear? चलो, let's move to 70s. 70s में this is the largest subunit and this is the smaller subunit. So largest subunit is made up of 23S rRNA. It is made up of 16S rRNA. 16S rRNA. अब इसकी प्रोटीन्स करें, it is made up of 32 proteins, fine. And then we have 16S rRNA. It is made up of 21 proteins, right? Similarly, Mg2 positive ions are required for their formation. Is that clear? ये आपको लर्न नहीं करना है, ठीक है। येस, फॉर नीट एग्ज़ाम यू हैव टू डू दिस। वाई? बिकॉज +1 में भी इसका पार्ट है, राइट। अदरवाइज फॉर CBSE बोर्ड एग्ज़ाम में इतना ये लर्न करना नहीं आता। बट येस, फॉर योर नॉलेज आई वॉन्ट टू टेल यू दैट राइबोसोम्स में देयर आर 2 सब यूनिट्स सेपरेटेड होती हैं प्रोटीन्स और rRNA का यूज़ बताना था आपको, दैट वेयर इज rRNA, राइबोसोमल RNA यूज। सो नाउ कैन यू राइट द फंक्शन ऑफ राइबोसोमल RNA, दैट rRNA इज रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम्स, राइट। इज दैट क्लियर? चलो, सेकेंड वी हैव, नेक्स्ट इज tRNA, नेक्स्ट इज ट्रांसफर RNA। tRNA, it is also called as ट्रांसफ़र RNA। अब बच्चे ये जो ट्रांसफ़र RNA है ना, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज एन अडेप्टर। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज एन अडेप्टर। ये बहुत बार पूछा जाता है आपसे, दैट वाई ट्रांसफ़र RNA इज़ कॉल्ड एज अडेप्टर RNA, ठीक है। अब सबसे पहले चीज़, जो ट्रांसफ़र RNA है ना, ये बहुत सारी चीज़ों को बाइंड कराता है। जैसे अडेप्टर है, फॉर एग्जांपल योर फ़ोन चार्जर इज़ देयर। अब वो चार्जर आपके सॉकेट के साथ भी बाइंड है, ठीक है, सॉकेट में भी लग रहा है। मोर ओवर वो चार्जर क्या कर रहा है, एक उसके पास पॉइंट है जो वायर के साथ बाइंड हुआ है, ठीक है। वन मोर पॉइंट इज देयर इन द चार्जर जो वायर के साथ बाइंड हुआ है, एंड वायर का वो वाला पार्ट फ़ोन के साथ बाइंड हो रहा है आपके। तो व्हाट इज़ दैट? दैट मीन्स इट इज़ एक्टिंग एज एन अडेप्टर, इट इज़ एक्टिंग एज अ वेक्टर, ठीक है, जो बहुत सारी चीज़ों को अपने साथ बाइंड करा रहा है। सिमिलरली जो ट्रांसफ़र RNA होता है, इट इज़ प्लेइंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस। ट्रांसलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका, बिकॉज इट इज़ बाइंडिंग टू mRNA ऑल्सो, ठीक है। मोर ओवर ये ऊपर से अमाइनो एसिड्स को भी लेकर आ रहा है, राइबोसोम के साथ भी बाइंड कर रहा है। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज अ वेक्टर और अडेप्टर। इज़ दैट क्लियर? अभी देखते हैं कि वो कैसे करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू, जो ट्रांसफ़र RNA है ना बच्चे, इसके 2 स्ट्रक्चर्स होते हैं। वन इज़ द 2D स्ट्रक्चर, इट हैज़ 2 स्ट्रक्चर्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस स्टडी अबाउट इट्स 2D स्ट्रक्चर। मैं बिल्कुल रफ सा स्ट्रक्चर बनाऊंगी, राइट, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि ये कैसा होता है। सी हियर, यहाँ पे क्या होता है इसके, like this. This is the 3' end, this is the 5' end, then this region, ठीक है। So what is this? This is called as clover leaf model. 2D structure also, it is also called as clover leaf model. It is also called as clover leaf model. इसको ध्यान से समझना, इसको समझोगे तो ट्रांसलेशन समझ में आने वाला है, राइट। अब देखो बच्चे, दिस इज एक्चुअली RNA, और ये क्या था, ये एक ही स्ट्रैंड था। दिस वॉज अ सिंगल स्ट्रैंड। RNA फॉर्मेशन हुआ 5' to 3', ठीक है। ये समझ के देखो कि ऐसे था, इट वॉज लाइक दिस। बट वॉट हैपन, बीच में कुछ ऐसे सीक्वेंसेस आ गए। फॉर एग्जाम्पल ये सिंगल स्ट्रैंड ही है, दिस इज़ अ सिंगल स्ट्रैंड, बट यहाँ पे कुछ ऐसे सीक्वेंसेस आ गए विच आर कॉम्प्लीमेंट्री टू दीज। तो ये क्या हुआ, ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन गए इनके,
ठीक है, सी हेयर। अब यहाँ पे दिस इज अ सिंगल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर, बट इन्हीं के आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से ये बाइंड कर चुके हैं, ठीक है। एंड नाउ दीज आर द रीजन्स जहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर नॉट फॉर्म्ड। Is that clear? This was a single stranded structure, transfer RNA single stranded structure है, but complementary sequences होने की वजह से hydrogen bonds are formed and the structure is folded in itself only, अपने आप में ही fold हो चुका है due to presence of complementary sequences, ठीक है। एक एग्जाम्पल देख लो, फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ सीक्वेंस हेयर UCA, ये मेरा एक स्ट्रैंड का सीक्वेंस है, और आगे मेरे पास पड़ा हुआ है आई हैव एक के साथ UG एंड A, UG एंड A, क्लियर। नाउ व्हाट विल हैपन, ये ऐसे फोल्ड हो जाएगा, इट विल फोल्ड लाइक दिस, ठीक है। फोल्ड होने के बाद ये हमारा जो UGA है वो इस तरह से फोल्ड होके इसके साथ बाइंड कर गया, एंड नाउ हियर इज नो स्ट्रक्चर। दिस इज कॉल्ड एज कि वो सिंगल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर था, अपने में ही बाइंड कर गया। सिमिलरली ट्रांसफर RNA में भी द केस इज द सेम। इज दैट क्लियर? नाउ सी, these are the regions where there are no hydrogen bonds, जहाँ पे कोई complementary base pairing नहीं है, ठीक है। यहाँ पे बच्चे क्यों बाइंडिंग नहीं हुई है, क्योंकि यहाँ पे कुछ अनयूजुअल बेसिस वर देयर। बस अभी के लिए इतना क्लियर रखो दैट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनयूजुअल बेसिस, ठीक है, खाली ATCG ही बेसिस नहीं होते, एडेनिन को जो बनाने वाले चीज़ें होती हैं, एडेनिन से बनाने वाले प्रिकर्सर्स होते हैं, कि एडेनिन पूरा बना नहीं लेकिन उसका प्रिकर्सर आके यहाँ पे जुड़ गया, तो वो कुछ अनयूजुअल बेसिस आने की वजह से यहाँ पे देयर इज़ नो बाइंडिंग, ठीक है। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द 3' रीजन। बच्चे जो 3' रीजन होता है ना, इस पे होता है अपने पास OH, वी नो दैट 3' पे OH होगा और 5 पे वी हैव फॉस्फेट। चलो, अब OH इज देयर, बट ये जो 3' वाली साइट है, दिस इज एक्चुअली द एमाइनो एसिड बाइंडिंग साइट। ये बाइंडिंग साइट्स को आपने ध्यान से समझना है, एमाइनो एसिड बाइंडिंग साइट। इज दैट क्लियर? देखो ज़रा ध्यान से, प्रोटीन सिंथेसिस कराना है, ठीक है। क्या चाहिए, व्हाट वी नीड व्हाट, लार्ज नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स फ्रॉम द सेल। सेल में 20 अमाइनो एसिड्स हैं अकॉर्डिंग टू द कोडॉन विच इज़ ऑन mRNA करेंगे तो आई विल टेल यू व्हाट अ कोडॉन इज़, ठीक है। mRNA को रीड करते करते वो जो कोडॉन्स आ रहे हैं, वैसे पढ़ चुके हो जेनेटिक कोड में भी, 3 सीक्वेंसेस और 3 बेसिस दे फॉर्म अ कोडॉन, उसको रीड करके हमें पता चल जाता है कि कौन सा अमाइनो एसिड आने वाला है। तो ट्रांसफ़र RNA उस अमाइनो एसिड को उठाता है और लेकर आता है। सो कहाँ पे बिठाएगा उस अमाइनो एसिड को? सो अमाइनो एसिड बाइंडिंग साइट इज दिस साइट, 3' साइट पे अमाइनो एसिड आके बैठ जाता है। इज दैट क्लियर? चलो, कम टू दिस साइड। What is this? This is actually DHU loop. ये loop का जो name है, let me write with another pen. Name of this loop is DHU loop. This is DHU loop, dihydrouridine loop, and this is some unusual base. But इससे important आपको क्या पता होना चाहिए, that here the enzyme which is called as amino acyl tRNA synthetase, amino acyl tRNA synthetase binds to this side, binds here. Is that clear? This enzyme is required in the process of translation. So what is the site? This is the site where the enzyme, name of the enzyme आपको learn करना पड़ेगा, amino acyl tRNA synthetase enzyme is binding at this site. Right? Is that clear? So transfer RNA acting as an adapter, one side amino acid is binding, another side enzyme which is called as amino acyl tRNA synthetase enzyme is binding, and this here, this one, this third loop is called as anticodon loop. It is called as anticodon loop. अब ये एंटीकोडॉन लूप क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, हमने mRNA बना लिया, दिस इज़ आर mRNA, दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ mRNA। mRNA के ऊपर सीक्वेंसेस आर देयर,
AUG. This is AU and G. राइट. नाउ ट्रांसफर आरएनए के ऊपर कुछ सीक्वेंसेस हैं जो इसके कॉम्प्लीमेंट्री हैं. सो दिस इज अ कोडॉन ऑन mRNA. And what is this? These are anticodons. Anticodon means complementary to the codons. तो यहाँ पे क्या होगा? UAC. That means anticodon, यहाँ ये anticodon ही कोडॉन को पहचानेगा और UAC वाला अमाइनो एसिड लेकर आएगा, उसको बाइंड कराएगा. Is that clear? mRNA पे जो इंफॉर्मेशन होगी उसको एंटीकोडॉन लूप रीड करेगा and respective to that anticodon, the amino acid, that specific amino acid will be carried by transfer RNA. Is that clear? Right? Codon and anticodon. Anticodons, they are on transfer RNA. Codons are on messenger RNA. Is that clear? Next part. Next one loop is there. This is variable arm. इसको leave this part. Next is the last. This site, this is actually T-Psi-C loop. Let me here write down the name. T-Psi-C loop. Again, a sequence, or we can say unusual bases there. No need to remember this. Actual, this is the ribosomal binding site. कौन सी site है ये? It is the site which binds the ribosome. क्योंकि राइबोसोम के साथ बाइंड करेगा तभी प्रोटीन सिंथेसिस होगा. So this site is the ribosomal binding site. Is that clear? So this is actually the clover. Clover क्या होता है? Long. Long को बोलते हैं clove. Right? तो long में आपने देखा है उसमें क्या होता है, उसके फेसेस होते हैं, नंबर ऑफ रीजन्स आर देयर. ठीक है. सो लॉन्ग जैसा लग रहा है, एक ये है, दिस रीजन इज देयर, दिस रीजन इज देयर. So this 2D structure is called as clover leaf model. 4 important sites are there meant for protein synthesis. Amino acid binding site at 3'. याद रखना 3' पे है. Next is amino acyl synthetase binding site. Next we have anticodon loop. Next is ribosome binding site. Is that clear? चलो next जो अपने पास आता है इसका, we have, this is 2D structure. Here we have the 3-dimensional structure. 3-dimensional structure. अब ये जो बच्चे 3-dimensional structure है ना, it is actually in the form of inverted L. It is called as inverted L. Inverted L. आपको इतना याद रखना है. Inverted L means उल्टा L बना रहा है. ये कुछ ऐसा structure बनाता है इस तरह से, लाइक दिस. बस आपको इतना समझ आना चाहिए दैट अगर आपको 3D स्ट्रक्चर के बारे में पूछा जाए देन इट इज़ इन्वर्टेड L एंड 2D स्ट्रक्चर इज क्लोवर लीफ मॉडल, जहाँ पे हमें क्लियरली इसकी बाइंडिंग साइट्स पता लगती हैं. इज दैट क्लियर? राइट. चलो नाउ लेट्स मूव टू मैसेंजर RNA. सो थर्ड इज मैसेंजर RNA. थर्ड वन इज, दिस इज mRNA, also called as messenger RNA. Messenger RNA. ओके. अब मैसेंजर RNA हमारा हेट्रोजीनस न्यूक्लियर RNA से बना था. वहाँ पे उसकी प्रोसेसिंग हुई थी, कैपिंग वॉज डन, टेलिंग वॉज डन. ठीक है. एंड व्हाट एल्स वॉज देयर? इंट्रॉन्स रिमूव हो गए थे, एक्सॉन्स वर देयर, स्प्लाइसिंग हुआ था. तो ये सारे का सारा हमें मिलेगा. राइट. अब देखो नाउ, राइट नाउ व्हाट आई एम मेकिंग, मैं एक यूकैरियोटिक mRNA बनाऊंगी. ठीक है. ट्रांसलेशन में हम क्या पढ़ेंगे? हम प्रोकैरियोट्स का ट्रांसलेशन पढ़ेंगे. तो लिटिल बिट डिफरेंसेस देयर इन mRNA ऑफ यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स. आपको पता है 5' पे G की कैपिंग नहीं होती है, 3' पे टेलिंग नहीं होती है इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स. राइट. बट सम रीजन्स आर देयर, लेट अस सी दैट. चलो. सो दिस इज द यूकैरियोटिक. यहाँ मैं लिख देती हूँ, इट इज़ यूकैरियोटिक mRNA. दिस इज यूकैरियोटिक mRNA. क्योंकि यूकैरियोटिक हम अच्छे से पढ़कर आए हैं, देखा है. तो बच्चे यूकैरियोटिक में व्हाट वाज देयर? कैपिंग वाज देयर एंड दिस इज द 3' टेल रीजन वाज देयर.
ठीक है, दिस इज 5 डैश कैप एंड 3 डैश पे किसकी है, टेल इज देयर. लेट मी मेक हेयर, दिस इज 7 मिथाइल गुआनिन, ठीक है, एंड फॉस्फेट, ट्राईफॉस्फेट की कैप है. एंड हेयर वी हैव टेल रीजन विद पॉली ए टेल, ये है बहुत सारी पॉली ए टेल. ओके, दिस इज अ कैप एंड दिस इज अ टेल, राइट. चलो, दिस इज डन. अब कैप का फंक्शन क्या था, कैप का फंक्शन था दैट इट इज प्रोटेक्टिंग द mRNA, बिकॉज अब इसको कहाँ जाना है, साइटोप्लाज्म में मूव करना है, दैट्स वाई कैप इज रिक्वायर्ड. मोर ओवर वन मोर थिंग इज देयर. अब ये mRNA है ना, सबसे पहले काम क्या होता है, स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, आई एम रिपीटिंग, स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम कम एंड बाइंड्स टू दिस मैसेंजर RNA. ठीक है, अब स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम को कैसे पता कि उसको इसी mRNA को जुड़ना है, तो mRNA को अटैचमेंट कराने के लिए देयर इज अ 5 डैश कैप. राइबोसोम इस कैप को पहचानता है और इसके साथ बाइंड करता है. सो दिस कैप हैज टू फंक्शंस. फर्स्ट, इट इज प्रोटेक्टिंग द मैसेंजर RNA एंड सेकेंड, इट इज द recognition site for ribosome, smaller subunit of ribosomes. Process पढ़ेंगे ट्रांसलेशन का, then you will get to know that how the process is going on, ribosome कहाँ पे आके वर्क कर रहा है. But right now just remember 5 dash cap ही ribosome को बताती है that this is your attachment site, come and bind here. Is that clear? और क्या होता है, चलो अब हमने कोडॉन्स पढ़े थे. आई टोल्ड यू दैट ट्रांसलेशन के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, स्टार्ट कोडॉन की ज़रूरत होती है एंड स्टॉप कोडॉन इज़ रिक्वायर्ड. ठीक है, सो लेट अस सी हेयर, दिस इज अ, हेयर वी हैव ए, देन यू, देन जी, दिस इज अ स्टार्ट कोडॉन और बीच में हमारे पास क्या होंगे, स्टॉप कोडॉन्स. फॉर एग्जाम्पल वी हैव यू ए ए, देयर वर 3 स्टॉप कोडॉन्स, उआ, उआग, उगा, ठीक है, यू ए जी, यू ए जी ए, ठीक है, एंड यू ए ए. सो दीज आर स्टॉप कोडॉन्स. ओके, नाउ तो अपने पास एक mRNA में क्या क्या आ गया, कैप इज देयर, टेल इज देयर. दिस इज व्हाट, दिस इज द स्टार्ट कोडॉन, बिकॉज mRNA के ऊपर क्या होता है, कोडॉन्स होते हैं, स्टार्ट कोडॉन, एंड दिस इज द स्टॉप कोडॉन. And I told you जो stop codon होता है, it does not code for any amino acid. That means ट्रांसफ़र RNA जब भी स्टॉप कोडॉन होगा तो ट्रांसफ़र RNA कोई अमाइनो एसिड नहीं लेकर आएगा. देयर इज़ नो ट्रांसफ़र RNA इवन फॉर दिस स्टॉप कोडॉन, वहाँ पे कुछ और ही आता है. ठीक है, स्टॉप कोडॉन के लिए देयर इज़ नो tRNA, राइट. चलो अब यहाँ पे बच्चे सी हेयर, आई टोल्ड यू राइबोसोम यहाँ से बाइंड किया, ठीक है, बाइंड करता करता अगर ये स्टार्ट कोडॉन यहीं पे हो जाता तो क्या होता, राइबोसोम फटाफट बैठा, वो तो आगे कुछ रीड करेगा ना. एकदम से अगर ऐसे प्रोटीन सिंथेसिस शुरू हो गया तो कुछ ना कुछ मिस्टेक के चांसेस आर देयर. तो राइबोसोम अभी आके बैठा है, ठीक है, बैठने के बाद नाउ इट हैज़ स्टार्टेड मूविंग, तो धीरे से उसको स्टार्ट कोडॉन मिला एंड फाइनली अपना प्रोसीजर स्टार्ट करिए. दैट इज, इट इज गेटिंग अ टाइम एंड स्पेस टू स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन. इसको टाइम मिल रहा है जिससे कि मिस्टेक नहीं हो रही है. ठीक है, सिमिलरली चलता चलता गया, व्हेन इट comes to this region, ribosome reaches this region, what will happen, stop codon आया, प्रोटीन सिंथेसिस stop, राइबोसोम बाहर चला गया. अब क्या होगा, ये देखो, some sequences are present here also. Let me tell you, there are some sequences at this region and some sequences at this region as well. But ये वाले जो sequences हैं, they are not involved in protein synthesis. They are not involved in protein synthesis, but they are required for efficient translation. Is that clear? और इन sequences को क्या बोला जाता है? They are called as UTRs. They are called as UTRs. That is before the start of translation, or we can say before the start codon and after the stop codon. There are some sequences which are not translated. These are untranslated regions. These are untranslated
translated regions. नेम इज इंडिकेटिंग अनट्रांसलेटेड मीन्स दे आर नॉट ट्रांसलेटेड, इनको यूज नहीं किया जा रहा है फॉर प्रोटीन सिंथेसिस. दीज आर अनट्रांसलेटेड रीजन्स विच आर नॉट ट्रांसलेटेड बट दे आर रिक्वायर्ड फॉर efficient translation process. For efficient translation process. I'm repeating why. बिकॉज 1 मार्क में यूटीआर्स की डेफिनेशन भी आ जाती है और इनका फंक्शन भी आ जाता है. दैट इज टोटल 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपका बन जाता है. व्हाट आर यूटीआर्स एंड व्हाट इज देयर फंक्शन. तो ये आप मिस कर जाते हो फ्रॉम एनसीईआरटी. 1 लाइन में दिया हुआ है एफिशिएंट ट्रांसलेशन प्रोसेस, आपको लगता है ऐसे ही लिखा हुआ है, बट what is UTR? UTR are untranslated regions present before the start codon and after the stop codon on mRNA, and they are required for efficient translation process. Is that clear? Right? चलो, so this is what? This is all about messenger RNA. अब देखो बच्चे, यूकैरियोट्स में तो हमने पढ़ लिया. Little bit differences there in prokaryotic messenger RNA. Prokaryotic messenger RNA. ओके, अब प्रोकैरियोटिक मैसेंजर आरएनए में क्या है? नो कैप इज देयर, नो टेल इज देयर. ठीक है, अगर कैप नहीं है तो राइबोसोम को कैसे पता चलेगा दैट इट हैज़ टू बाइंड टू दिस रीजन? तो उसके लिए प्रोकैरियोट्स में एक सीक्वेंस होता है विच इज कॉल्ड एज शाइन-डिल्गार्नो सीक्वेंस. दिस इज कॉल्ड एज SD सीक्वेंस ऑल्सो. SD sequence. ठीक है, दिस इज एक्चुअली AGG एंड AGGU. ये सीक्वेंस है, आपको लर्न नहीं करना. जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर नॉलेज आई वांट टू टेल यू दैट स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम स्कैन करता है mRNA को, और जब उसको ये सीक्वेंस मिल जाता है देन राइबोसोम गेट टू नो दैट उसको प्रोटीन सिंथेसिस कराना है. Is that clear? 5 प्राइम एंड पे उसको ये SD सीक्वेंस मिलेगा. दिस इज कॉल्ड एज शाइन-डिल्गार्नो सीक्वेंस ऑन द नेम ऑफ द साइंटिस्ट. दिस इज शाइन-डिल्गार्नो सीक्वेंस. शाइन-डिल्गार्नो सीक्वेंस एंड दिस इज 3 प्राइम एंड. फाइन, रेस्ट इज सेम. स्टार्ट कोडॉन. ठीक है, हियर इफ द स्टार्ट कोडॉन इज देयर, ओके, देन स्टॉप कोडॉन इज देयर. राइट, इट इज़ उगाग, कुछ भी हो सकता है. मोर ओवर एक और डिफरेंस आता है यहाँ पे. यूकैरियोट्स में दिस AUG कोड्स फॉर मिथियोनिन. ठीक है, मिथियोनिन एंड इट इज एक्टिंग एज स्टार्ट कोडॉन. यहाँ पे जो प्रोकैरियोट्स में जो AUG है, फर्स्ट वाला इनिशिएशन कोडॉन वाला है, इट कोड्स फॉर फॉर्माइल मिथियोनिन. इट इज कोडिंग फॉर फॉर्माइल methionine. This is coding for formyl methionine. That is जो methionine है उस पे फॉर्माइल ग्रुप लगा हुआ है. बस यहाँ पे सिंपल methionine है. It is coding for formyl methionine in case of prokaryotes. This is the difference. No capping, no tailing in mRNA, but यहाँ पे recognition कैसे हो रही है? With the help of the sequence which is called as शाइन-डिल्गार्नो sequence. अब क्लियर हुआ? राइट, चलें आगे. ठीक है, चलो, लेट्स स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन नाउ. हाउ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन अकर्स, कितने स्टेप्स हैं ट्रांसलेशन में, ये सब पढ़ेंगे. फाइन, चलो. सो ट्रांसलेशन मीन्स फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन बाय रीडिंग द सीक्वेंसेस ऑन मैसेंजर RNA. राइट, चलो. अब बच्चे ट्रांसलेशन में हाउ मेनी स्टेप्स आर देयर? ठीक है, फर्स्ट स्टेप इज activation of amino acids, and charging of tRNA. Activation of amino acids and charging of tRNA. अब आप लोग बेसिकली क्या मिस्टेक करते हो? देयर आर एक्चुअली 3 स्टेप्स, इनिशिएशन, एलोंगेशन एंड टर्मिनेशन. बट जो सबसे पहला स्टेप है प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन का, व्हाट इज दैट स्टेप?
अमाइनो एसिड्स को एक्टिवेट करना है और चार्ज करना है टीआरएनए से, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। अब ये क्या है, लेट अस सी हियर, ठीक है। इस प्रोसेस में सबसे पहले क्या हो रहा है, that is two processes are going on. First is activation of amino acid and second is charging of tRNA. So let us move with the first step, activation of amino acid. अब देखो amino acid activate हो रहा है, one enzyme is there which will be activating this enzyme and name of the enzyme is amino acyl tRNA synthetase. पढ़ा था tRNA में, उसकी एक बाइंडिंग साइट थी अलग से. So let us study here. सोच के देखो, this is the amino acid. Let us see what is it. इट इज़ द अमाइनो एसिड. ये अपने पास एक अमाइनो एसिड आ गया. देन वी हैव एंजाइम, एक ऐसा एंजाइम है जिसके पास भी कुछ बाइंडिंग साइट्स होंगी, ठीक है. नाउ वी हैव द एंजाइम. ये अपने पास एक एंजाइम आ गया लाइक दिस, इस तरह से. ये हमारा एंजाइम है. स्ट्रक्चरल फॉर्म में इसलिए बता रही हूँ बिकॉज समझना इजी हो जाएगा. सो नेम ऑफ द एंजाइम इज अमाइनो एसाइल. इट इज अमाइनो एसाइल tRNA synthetase. Amino acyl tRNA synthetase. What is it? It is the enzyme. Right? चलो, अब और क्या ज़रूरत है हमें, अब एनर्जी चाहिए ना, किसी चीज़ को बाइंड कराना है तो वी नीड द एनर्जी. सो नेक्स्ट इज़ द एनर्जी. अब वो एनर्जी कहाँ से आएगी अपने पास, विद द हेल्प ऑफ ATP. दिस इज़ द ATP. इज दैट क्लियर? अब क्या हो रहा है, ध्यान से देखो, व्हाट विल हैपन. ये जो अमाइनो एसिड है, दिस अमाइनो एसिड विल बाइंड टू दिस एंजाइम. और बाइंड कौन कराएगा, ATP कराएगा. ATP के बॉन्ड्स टूटेंगे. व्हाट इज ATP? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट. ये फॉस्फेट के बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, इसमें कुछ एनर्जी ज़्यादा लगेगी, मोर एनर्जी इज यूज्ड. यूजुअली ATP टूटता है तो इट फॉर्म्स वन फॉस्फेट, बट दिस टाइम ATP टूटेगा तो टू फॉस्फेट्स विल बी फॉर्म्ड. लेट अस सी हाउ. दिस इज आवर एंजाइम. इसी के साथ सब कुछ बाइंड कर जाएगा. See here. Now what is it? This amino acid. Our amino acid will bind to this site. Clear? ये amino acid यहाँ आके bind कर गया and ATP यहाँ पे आके जब bind energy लगती है तो this ATP is converted into AMP, right? Plus 2PI और 2 pyrophosphates are released. Is this part clear? ये देखो enzyme, और ये एक कॉम्प्लेक्स बनता है विच इज़ वेरी शॉर्ट लिव्ड. बहुत थोड़े से टाइम के लिए इमिडिएटली ये ट्रांसफर RNA को बाइंड करा लेता है, ठीक है. व्हाट इज दिस? दिस इज एन इंटरमीडिएट और अ कॉम्प्लेक्स. ये एक कॉम्प्लेक्स बन रहा है विच इज़ वेरी शॉर्ट लिव्ड, राइट. सो व्हाट इज दिस कॉम्प्लेक्स? दिस इज अमाइनो एसाइल tRNA synthetase enzyme complex. It is amino acyl synthetase AMP complex. This is AMP complex क्योंकि इसके साथ AMP is in bound state, right? अभी क्या होगा, यहाँ देखो ध्यान से. Immediately what will happen? Now a transfer RNA will come. अभी क्या होगा, अब एक ट्रांसफर RNA. लेट मी मेक अ वेरी इजी स्ट्रक्चर ऑफ tRNA. अब इस tRNA में हमने क्या बनाया, ये है अपने पास tRNA इस तरह से. ऊपर इसके पास क्या है, इट इज़ हैविंग द साइट फॉर बाइंडिंग द अमाइनो एसिड. ऊपर अमाइनो एसिड बाइंडिंग साइट थी, नीचे इसके पास क्या था, एंटीकोडॉन. बस इजी बनाने के लिए वी आर जस्ट डूइंग दिस पार्ट. ओके, नाउ एक tRNA आया. अब वो कहाँ बाइंड करेगा, just see again, this is the amino acid, this is the structure, ये है और ये है. क्लियर? अब क्या होगा, AMP यहाँ से निकल जाएगा. AMP will be shifted outside, ये बाहर चला गया. और what we can say, let me see here, AMP हमारा ये रहा, ठीक है. चलो
ये चीज़ अलग हो गई। अब और क्या होगा, देयर अमाइनो एसिड था यहाँ पर, हमारा ये टीआरएनए यहाँ पे आके बाइंड करता है, इट बाइंड्स टू दिस साइट। ये क्या करेगा, इसको पकड़ेगा अमाइनो एसिड को, दिस टीआरएनए कम्स एंड बाइंड एज दिस साइट, इसको पकड़ेगा। जैसे ही इसको पकड़ता है एएमपी भी रिलीज हो जाता है एंड फाइनली ये एंजाइम भी अलग हो जाता है। इज दैट क्लियर? अब अपने पास जो स्ट्रक्चर बन के आएगा, सिंपल व्हाट वी हैव दिस पार्ट, दिस इज लाइक दिस, प्लस क्या क्या बना अपने पास, एएमपी वाज रिलीज्ड, मोर ओवर ये एंजाइम भी फ्री हो चुका है। अब दिस एंजाइम इज ऑल्सो फ्री नाउ, दैट मीन्स इसके पास ये क्या है, इसके पास है अमाइनो एसिड। नाउ दिस टीआरएनए इज कॉल्ड एज चार्ज्ड टीआरएनए, दिस टीआरएनए इज कॉल्ड एज चार्ज्ड टीआरएनए, एंजाइम इज फ्री एंड दिस एएमपी विल बाइंड अगेन टू दिस पायरोफॉस्फेट, सेल में से पायरोफॉस्फेट उठाएगा, ये अपना एटीपी बना लेगा, दिस एंजाइम इज फ्री फॉर another binding, another charging of tRNAs. Is that clear? So this is the A step and this one is the B step. Is that clear? This is activation of amino acid. यहाँ पे हमारा amino acid activate हो गया और यहाँ पे क्या हो चुका है, tRNA की charging हो चुकी है। Is that clear? Right? Fine. So now our tRNA is charged. So all the tRNAs they are charged like this. सबसे पहले tRNA अमाइनो एसिड को पकड़ कर लेकर आता है। कैसे पकड़ता है? बिकॉज नीचे क्या है, उसके पास वो वाले एंटीकोडॉन्स पड़े हैं, तो जैसा एंटीकोडॉन होगा उसी से रिलेटेड वो वाला अमाइनो एसिड वो सेल में से उठाएगा और अपने ऊपर उसकी चार्जिंग कराएगा। इज दैट क्लियर? सो वेरी फर्स्ट स्टेप इज डन। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो 3 प्रोसेस आते हैं, दैट इज इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड termination. So that we will do in our next class. इतना अच्छे से पढ़ो so that you are able to absorb this part. First is 3 types of RNAs कौन से हैं and very first step is very important. ये first step समझ में आया तो आगे process clear हो जाएगा. Right? All the best.